Good afternoon, everyone. Friends, this is orientation. It's an open session about PSIR as an optional. Okay. So, should you be thinking about it to take this optional or not? I will try to give you some idea of it. We will try to learn what it is, what it relates to. See, child, when I talk of PSIR, then I am talking of word political science, international relations. So what all will be a part of it? ठीक है, क्या क्या रहने वाला है अगर हम कहें political science or international relations में. So what all will be included, and is it an easy subject? Is it something going to interest you or not? That you need to comprehend about. Correct? So, child, the subject political science is all about that you understand what are political institutions, what are political concepts, what are political theories, what is political thought, then comparative politics, comparing it with other political arrangements, then international relations. Of course, as it will include everything of politics also, it will include political institutions also, it will include approach to political understanding and political studies also. So, as an academic discipline, you can say it is a systematic study of political institutions. It is a systematic study of political institutions. It's a systematic study of political thought. It's a systematic study of political thought. Then, so political institutions, political thought, it is a systematic study of political concepts. Okay, these institutions, this thought must have given some ideas. So, what are those ideas? So, it is a systematic study of them. Let me make it easier for you. When I say term political, okay, when I say term political, so what it refers to? Important to understand is that what this term political refers to. So, friends, if I say the term political, it will refer to the activities, sum of all such activities, all such activities which are associated, with what? Which are associated with the arrangement of power, decision making. Okay, so it is going to involve competitive arrangement, it is going to involve conflict management. Okay, this is one aspect. So, all such activities, then all such institutions, it will involve all such institutions which are seen
authoritative or legitimate, which are seen authoritative or legitimate, which are seen authoritative or legitimate to carry out what type of activities? Political activities. ठीक है. So the institutions which are involved in arrangement of conflict management, the institutions which are involved in decision making, the institutions which are involved in the arrangement of power, those are associated with the word political, correct? Then if I proceed further, it will also include international institutions, okay? It will include international organizations, it will include international organizations which are involved in influencing the political decisions of the various countries, will include international organizations which participate or which influence. Sometimes they may not be directly participating but influencing, which influence the political decisions of various governments. Okay, of various governments. So when you are understanding that what is political science, what is politics, you need to understand that it is a study about those aspects, those concepts, those theories which somewhere give an understanding, provide an understanding that how this activity should be carried out, how it is ought to be carried out. It's not necessary that it is to be carried out in the same manner as one thinker is thinking. No, it can be in a way. You may have some other idea, somebody else may give some other idea. So when I start understanding what is political science, then you try to understand that political science is somewhere associated with the concepts, with the theories, with the principles, with the institutions, and of course the politics. If I say politics in India, yes, that will be important. How we have actually carried out the political process in India. What have been those significant factors which have influenced politics in India. So that's why if you will see politics in India, or I will say history of politics in India, will also become important for you. थोड़ी बातें हुई है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बच्चों को, और आसान करते हैं। यार ये पॉलिटिकल वर्ड, पॉलिटिक्स है क्या, ये समझ लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए सोसाइटी आप सब समझते हैं, या एक गांव ले लेते हैं, एक विलेज। विलेज में मान लेते हैं पॉपुलेशन 1000 है, ठीक है, 1000 वहां की पॉपुलेशन है। वो पहली बात तो ये कि क्या ये 1 के 1000
डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं। कुछ छोटे बच्चे होंगे, कुछ किसी और कारण से ना करते हो, तो लेट्स कंसीडर, फिर भी एक बड़ा नंबर लेते हैं कि इनमें से 1000 में से 200 लोग डिसीजन मेकर्स हैं। ये होता नहीं, ये बहुत आइडियल कंडीशन है अगर ऐसा हो तो। 200 लोग डिसीजन मेकर हैं। चलिए डिसीजन लेते हैं। अब कुछ चीजें आपको पूरा पॉलिटिकल सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रायोरिटीज, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, 3 प्रायोरिटीज या 3 चीजें हैं, ठीक है, जो गांव में करना चाहते हैं लोग। अब ये डिसीजन कैसे होगा? 200 लोग हैं, ठीक है। लेट्स हैव 1 सर्कल फॉर 10, ठीक है। कंसीडर 1 सर्कल फॉर 10। राइट, ठीक है। ये मैंने इसलिए इनको एक सर्किल में ले लिया है, वैसे पूरे 200 के 200 दिखाने चाहिए। तो एक तो एकेडमिक कन्वीनियंस के लिए, आई हैव फॉर द पर्पज ऑफ एकेडमिक कन्वीनियंस, और दूसरा इसलिए कि लगभग 20 लोग एक विचार रखते हैं, ठीक है। जो अब इनको हम लेके मानकर चल रहे हैं, दिस इज ऑल हाइपोथेसिस। अब इनमें से ये लोग 1 को ज्यादा बड़ा मानते हैं कि 1 पहले करना चाहिए। 1 1 1 1 1 1, ठीक है। 5 और 3 8, ओके। कंसिडरेबल नंबर, 80 लोग हैं। इतने लोग मानते हैं, ये सॉरी 2 2 2 2 2 2 2, ये भी 7 हो गया, करेक्ट। और इतने लोग मानते हैं कि प्रायोरिटी 3 को पहले लेना चाहिए। 5 बचे हुए होंगे, ठीक। तो अब अगर मैं समझूं इन 200 डिसीजन मेकर्स में से, अगर मैं लिखूं कि प्रायोरिटी 1 के फेवर में फर्स्ट चॉइस में कितने लोग हैं? 80 लोग, 70 लोग, और इसमें कितने हैं? 50 लोग, करेक्ट। हाउ टू डिसाइड? हाउ टू डिसाइड? ये जो प्रोसेस होगा, दिस इज पॉलिटिकल प्रोसेस, जिससे हम आगे बढ़ेंगे। अब इस चीज को तो आपको लग रहा है कोई भी डिसीजन होगा ही नहीं, क्योंकि बाई मेजॉरिटी भी इसमें कुछ होता नजर आ नहीं रहा है। हां, अगर सिंपल मेजॉरिटी की बात है तो 80 के फेवर में ज्यादा है, लेकिन अपोजिशन भी हो जाएगी क्लियर कट, तो वो उसे काट देंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट तो होता नहीं है लेजिस्लेटिव हाउस में, ठीक है। तो यहां पे कैसे होगा? यहां तो भाई जो भी उपस्थित हैं और वोटिंग हैं उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। मान लीजिए सारे ही उपस्थित हैं, ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट, देन हाउ डू यू गो अहेड? इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू प्रोसीड, करेक्ट। एक और कॉन्सेप्ट सुनते हैं, तब हमें और आसान समझ में आएगा कि आखिर ये पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल प्रोसेस काम किस तरह से करता है।
ये सब इंडिविजुअल्स हैं, ये मान लीजिए 12 इंडिविजुअल्स हैं, करेक्ट। अब दे लाइक समथिंग, दे डिसलाइक समथिंग, करेक्ट। बट लाइक, स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स दे विल मैटर। कुछ जनरल होंगे जो कैजुअल इंटरेस्ट रखेंगे। तो किस किस तरह के इंटरेस्ट हेल्प करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस को समझने में? स्पेसिफिक इंटरेस्ट्स, ठीक है, जनरल इंटरेस्ट्स, ठीक है, और इस जनरल को एक हम पार्ट भी लेते हैं जो कैजुअल होते हैं, यस एंड नो, जिनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक। कुछ लोग इस तरह के होते हैं। When I understand it, जब भी मैं इस चीज की बात करता हूं, when I understand it, when I talk about it, then I see, उसको आप पार्टी दे रहे हैं, ठीक है, यू आर गिविंग अ पार्टी। खाने का मेन्यू ले लीजिए, क्योंकि उसमें लाइक्स और डिसलाइक्स, वैल्यूज, ठीक है, कस्टम्स, हैबिट्स सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। खाना ही ले लेते हैं। You are ordering for something. Let's order a pizza. That's right. अब आप पिज्जा ऑर्डर कर रहे हैं, should it be veg or non-veg? Correct. Let's identify how many are in favor of, how many are in favor of non-veg. These are, let's say, in favor of non-veg. They want to eat a non-veg pizza. How many of them want to eat vegetarian pizza? Let's say this is also 5. Okay. अब आप कहेंगे ये तो दिक्कत है। नहीं, अभी कुछ और लोग भी हैं। These specifically want to eat a veg pizza. बढ़ा दिया हमने एक। There are some who can have a veg pizza as well as a non-veg pizza. Correct? Who can have a veg pizza or a non-veg pizza. अब बेटा इस प्रोसेस में ये चाहते हैं कि एक कैसा पिज्जा आए, नॉन वेज आए, ये चाहते हैं वेज आए, ये दोनों में ओके हैं, दे आर ओके विद बोथ। वो कहते हैं वी वांट टू ईट अ पिज्जा वेदर इट इज नॉन वेज और वेज, इट विल नॉट मैटर। हमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बस पिज्जा मंगवाइए, वो खाना है, बाकी रेस्ट इज ऑल ओके। दैट्स राइट। तो यहां पर इफ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ आई सी दिस, इट इज लुकिंग लाइक दैट थिंग्स आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेजिटेरियन पिज्जा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें तब बराबर था, और ये दो लोग चाहेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि हम बराबर ही पहुंचते हैं, खाने को ही नहीं मिलेगा, सो दे विल एक्चुअली गो फॉर वेज इफ अ वोटिंग इज डन। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, दोज हु वांटेड टू ईट अ नॉन वेज पिज्जा, दे कंसीडर टू बी इग्नोर्ड। दैट्स राइट। सो पॉलिटिकल प्रोसेस इज द वन विच ट्राइज टू एग्रीगेट the specific interests, general interest and casual interests in a way that everyone is able to get it. देखते हैं कैसे होगा। अगर सिंगल एक पिज्जा इतना बड़ा बनवाते तब तो एक बात थी, लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई हम
एक काम करते हैं, 4 पिज्जा मंगा लेते हैं, ठीक है, तो 2-2 आसानी से हो जाएगा, दोनों ले सकते हैं, सपोज इस तरह का हो, या आप कहें 3 ही पिज्जा आ सकते हैं, पैसे ही उतने हैं, सो दे विल स्टिल गेट सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट यस we also have become a part of this political process. So, political process, politics is all about understanding the different interests, okay, and including them to comprehend the concerns of a society at a given point of time. कुछ इसमें हिस्टोरिकल होगा, तो वर्ड पॉलिटिकल समझ में आया पहले, पॉलिटिक्स क्या है? सो पॉलिटिक्स इज द गैमेट ऑफ एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद डिसीजन मेकिंग, पावर अरेंजमेंट, गवर्नेंस इन अ कंट्री. तो अगर एक्टिविटी के हम पढ़ेंगे तो वो कहलाएगी पॉलिटिक्स. इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को पढ़ेंगे तो वो सब पॉलिटिकल है. अब अगर मैं सब्जेक्ट के रूप में पढ़ूं तो बन जाता है पॉलिटिकल साइंस. अगर खाली डिफाइन करूं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में या कहीं पर, तो ये हो जाएगा कि भाई पॉलिटिकल क्या है, इट रिलेट्स टू दीज थिंग्स जो हम पहले करके आए हैं अभी. अंडरस्टैंडिंग इट. लेकिन सब्जेक्ट मैटर ये है. अब इसके आधार पे थोड़ा सा समझते हैं आगे, दैट व्हाट इट रेफर्स टू, क्या समझे, जिसे कहते हैं भाई कुछ बूझे. करेक्ट. लेट्स अंडरस्टैंड इट, दैट व्हाट इट विल इंक्लूड. Political science as a subject which will include what. ठीक है, अगर खाली पॉलिटिकल साइंस भी यूपीएससी लिख देती तब भी इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना ही था, वो पार्टी है. तो इट विल इंक्लूड माय चाइल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल इंक्लूड द मीनिंग, द स्कोप, द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल. political science, etc. Political, politics, political institutions, etc. ठीक है, इनको सबसे पहले तो बेसिक, what it is associated with. इसके बाद अगर मैं समझूं तो ये अटेम्प्ट करता है अंडरस्टैंड को, जिसे हम पॉलिटिकल थियरी में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, करेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये सब अटेम्प्ट करेगा पढ़ने की. कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिकनिज्म, ये सब कॉन्सेप्ट्स आएंगे, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स. इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए अब हम पढ़ेंगे क्या, पॉलिटिकल थॉट. तो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हिस्सा बनते हैं पॉलिटिकल थियरी का. करेक्ट. अब पॉलिटिकल थॉट जो है ये इंडिविजुअल्स के थॉट हैं विच हैव हेल्प्ड इन डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज. भाई जस्टिस वर्ड जो आया, इस पे अलग अलग लोगों ने कुछ बातें की होंगी. ठीक है, जाहिर बात है कि इसको जस्टिस कहा जाएगा या इस चीज को कहा जाएगा जस्टिस. सो वेदर इट विल हैव मॉरल एस्पेक्ट, यस इट विल हैव इट. वेदर इट विल हैव लीगल एस्पेक्ट, यस इट विल हैव. वेदर इट विल हैव सोसाइटल एस्पेक्ट, यस इट विल हैव. Whether it will have value aspect, yes it will have.
होना ही है। यह संभव ही नहीं है कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें और आप उसे प्योरली एक एम्पेरिकल थॉट के रूप में पढ़ें। एम्पेरिकल इज मस्ट, इट्स इंपॉर्टेंट, तभी तो वर्ड साइंस जस्टिफाई होगा। लेकिन एम्पेरिकल का मतलब यह भी नहीं है दैट वी निग्लेक्ट द नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव इन नॉर्मेटिव आइडियाज। दैट्स नॉट करेक्ट। अलग अलग अप्रोचेज होंगी, फेमिनिस्टिक अप्रोच निकल के आएगी, यूटिलिटेरियन अप्रोच बन के आएंगी, करेक्ट। अप्रोच ये भी आएगी कि शुड वी सरेंडर सोवरेनिटी और नॉट, शुड इट बी एक्चुअली सरेंडर्ड और शुड इट नॉट बी सरेंडर्ड। ऑल दीज थिंग्स विल डेफिनेटली कम, आना ही है। अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो सब्जेक्ट है भाई, इसमें अगर मैं मोटी मोटी बातें कहूं तो एक तो थिंकर्स पढ़ेंगे हम, जिन्होंने हेल्प की क्या समझने में कि पॉलिटिकल थॉट कैसे डेवलप हुआ। और इन थिंकर्स में पढ़ने में इंटरेस्टिंग इसलिए होता है कि आपका भाई एथिक्स भी कवर हो जाता है, पूरा कंप्लीट ही कवर हो जाता है, कुछ छूटता नहीं है जो भी थिंकर्स का पार्ट है। क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि मैं पॉलिटिकल साइंस का थॉट पढ़ूं और उसमें उस समय की मोरालिटी, जिस चीज को भी वो मानते थे, जिस पर लेजिटिमेट, मैंने एक वर्ड लिखा लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशंस, लेजिटिमेट लॉज, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, किसको लेजिटिमेट मानोगे? So all these things, they all become the part of political, correct? एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। You all must be knowing about Karl Marx. प्लेटो के टाइम पे नहीं जाते हैं। I have discussed something about it, you can find in videos. थोड़ा philosophical छोड़कर, let's try to become more empirical, more scientific. Let's try to see what problems the thinkers are seeing in the society and how they are reacting to the political arrangement of their times. If I talk about Karl Marx, अगर मैं Karl Marx की बात करूं, right? So, what do you understand in Karl Marx? A person who is having, looking like by the people, radical views, ठीक है? ऐसा लगता है कि भाई ये क्रांतिकारी चिंतक है, ये तो परिवर्तन चाहता है और बड़ा परिवर्तन चाहता है, क्योंकि वो स्टेट के अरेंजमेंट को ही एक्सप्लॉयटेटिव बता देता है। कहता है जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो इस एक्सप्लॉयटेटिव शोषणकारी राज्य का प्रमुख तंत्र है, प्रमुख, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है, प्रमुख सिस्टम है। सो यू नीड टू विदर अवे ब्यूरोक्रेसी इफ यू वांट टू विदर अवे द स्टेट। एनीवन विल से कि पॉलिटिकल साइंस के पूरे अरेंजमेंट में स्टेट तो सेंट्रल है। तो कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं, कैसी स्टेट की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि विदर अवे कर दीजिए, क्योंकि कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि स्टेट का जो ये अरेंजमेंट उस समय चल रहा था 1840s, 1850s, 1840s मेनली आई विल टॉक अबाउट, ये एक्सप्लॉयटेटिव है। इट इज नॉट इम्पार्शियल, इट इज पार्टीजन इन अप्रोच। इट टेक्स साइड ऑफ वन साइड ऑफ, okay, bourgeois, and it is neglecting the proletariat, that is the common people who were there. तो वो कहते हैं कि आप इस स्टेट को नीचे लाइए, क्योंकि जो इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जो पावर अरेंजमेंट है, वो आपके किसी काम का नहीं है। और हीगल ने जो कहा है, वट एवर हीगल हैज सेड, दैट विल नॉट बी वेरी effective, that's not very useful for you, because
Hegel took the side somewhere, knowingly or unknowingly, of those who are capitalists. ठीक है, तो वो कहते हैं Hegel is wrong, it is not based on social divisions, it's based on, sorry, it's not based on economic divisions, it's based on social divisions. तो ये किस पे बेस्ड नहीं है? इकोनॉमिक डिवीजन. इकोनॉमिक डिवीजन का मतलब बेटा डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि स्पेशलाइजेशन, यानी कि डिफरेंशिएशन, वर्क डिफरेंशिएशन. जाहिर बात है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहीं कहीं शुरू हो रहा होगा, अपनी शुरुआती स्टेज में होगा, तो कुछ क्वेश्चंस जरूर उठते होंगे कि जो किसान हैं, जो भूमिहार हैं, उनको क्या करना चाहिए. द लैंडलॉर्ड्स, शुड दे इन्वेस्ट इन मशीनरी and hired some people for producing goods through machines, or should they continue having farms and hire people to organize agriculture in a better manner. रेनेसां के बाद बेटा यूरोप में विचार तो आ गया है, तो ये कहना कि जो वहां के बड़े किसान थे वो अनभिज्ञ थे, दैट दे वर नॉट अवेयर एट ऑल ऑफ सच थिंग्स विच आर सिग्निफिकेंट, गलत होगा, इट्स रॉन्ग. दे ऑल वर अवेयर, उन्हें मालूम था, क्योंकि नॉलेज तो एग्जिस्ट कर रही है. नॉलेज इज एग्जिस्टिंग, इट्स नॉट दैट नॉलेज इज नॉट एग्जिस्टिंग, नॉलेज इज एग्जिस्टिंग. बट एक क्वेश्चन था कि वो किस तरफ जाएं, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने यह समझा कि अगर हम मशीन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे फायदे में रहेगा. कैसे रहेगा आपको समझाता हूं. जो कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट की थ्योरी है कार्ल मार्क्स की, वो आपको यहां समझ में आएगी. देखिए, आप बड़े लैंडलॉर्ड हैं, आपके पास 500 एकड़ लैंड है या 1000 एकड़ लैंड है, और आपने उसमें 200 लैंडलेस लेबरर्स को यूज करके उनसे खेती करवाई. अब आपके पास एक, जस्ट वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, कहते हैं कि मान लेते हैं 100 टन अनाज उत्पन्न हुआ, 100 टन गेहूं, फूड ग्रेन्स. ठीक है, ओके. अब सवाल यह उठता है कि वो जो 200 लोग थे उनको इसमें से कितना दिया जाए और आपका कितना रहे. तो पहले जो सिस्टम रहा करता था, अगर मैं यूरोप की बात करूं, तो 100 में से लगभग 33%, ठीक है, वो चला जाता था उन सब लैंडलेस लेबरर्स को. करेक्ट. क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा, ये वो समय है बेटा, ये शुरू का समय नहीं है कि जब 11, 12, 13 सेंचुरीज एडी में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन था. एक्सप्लॉयटेशन अभी भी है, लेकिन एक ठीक ठाक हिस्सा वो मिल जा रहा है काम करने वालों को. ऑफकोर्स आफ्टर द टैक्सेस, ऑफकोर्स आफ्टर द टैक्सेस, ऐसा नहीं है. तो 100 में से अगर मैं टैक्स दे दूं तो लेट्स से 33 टैक्स चला गया, बचा 67. तो वो 33% ऑफ 67 यानी कि लगभग 24 से 25 टन 200 लोगों में बढ़ गया. गुड इनफ, नॉट बैड, नॉट बैड. ठीक है, तो 25 टन इंटू 1000, तो आप समझ सकते हैं 25,000 किलो उन लोगों में बांट दिया गया. खा रहे हैं, पी रहे हैं, हिस्सा मालूम है. कॉम्प्लेक्स कर देता हूं, मशीन लगा देता हूं.
बातें करता हूं निवेश की, इनिशियल निवेश, पहले तो लैंड था, मशीन लगाता हूं, प्रोसेसेस, केमिकल्स लाता हूं, बिजली की सप्लाई या किसी और तरह से जैसे भी चलता हो, जनरेटर के हेल्प से। अब मशीनों में अब उन्हें बहुत क्लियर नहीं रहेगा कि हमें 25 टन ही मिलना चाहिए। अब मान लेते हैं अगर 100 टन के बराबर, अब यहां गेहूं नहीं हो रहा है, यहां फिनिश प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन उसकी कीमत उस 100 टन के बराबर है, या मान लेते हैं भाई 100 टन होते तो क्यों कोई काम करता, मशीनें लगाता, 500 टन के बराबर है। तो क्या 24 से भी मल्टीप्लाई करूं इंटू 5, 110 टन के बराबर लाभ वर्कर्स को मिलेगा? नहीं मिलेगा। उनका अब भी 25 ही रखेंगे, क्योंकि उनको तो 25 की आदत है। आपके यहां पर हो गया कितना? टैक्स हटा देते हैं सरकार का, जो हम 33 से ले रहे थे, तो लगभग 165 हट गया, बचा कितना? 500 में से इफ आई सी हाउ मच is actually still left, so it will be left around 345 tons equivalent profit। ठीक है, कितना प्रॉफिट बचा हुआ है? 345 टन्स का। किसानों को कितना दिया? 25। मुझे कितना बचा? हाउ मच आई एम एबल टू सेव? I am able to save around, how much I am able to save? I am able to save around 320। अब ऑफिसर्स को अगर मैं करप्शन करना चाहूं, पहले मुझे कितना बचता था? देख लीजिए, 33, 25, कितना चला गया? 58 चला जाता था। ठीक है, अब 42 बचता था, अब है मेरे पास 320। 320 में से अगर मैं 40, 50, 60 अधिकारियों को भी खिला दूं, तो क्या नीतियां अपने फेवर में नहीं बना सकता? यहां से कार्ल मार्क्स का थॉट प्रोसेस शुरू होता है। अंडरस्टैंडिंग इट? तो उसने पॉलिटिकल प्रोसेस को उस समय के माना कि इट इज अगेंस्ट हुम? इट इज अगेंस्ट द कॉमन मैन, प्रोलेटेरिएट। सो you need to develop communes and challenge this system, that's right। तो अभी कार्ल मार्क्स नहीं पढ़ाया मैंने, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की कि थिंकर्स अपने अपने समय में किस तरह से थॉट बनाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब प्लेटो में चले जाते हैं। प्लेटो क्यों ज्यादा फिलोसॉफिकल नजर आते हैं एरिस्टोटल से? एरिस्टोटल में थोड़ा सा कहते हैं एम्पिरिसिज्म नजर आता है, थोड़ा ज्यादा सिस्टमेटिक हैं, और इसीलिए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कह भी देते हैं किसको? एरिस्टोटल को, जबकि प्लेटो को पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करते हैं। क्योंकि प्लेटो जो है एक कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर का विचार रखते हैं। फिर कहते हैं that how to improve, how to correct the overall idea and the overall understanding। ठीक है, तो प्लेटो के थॉट प्रोसेस में बेटा क्या आएगा? जस्टिस की डेफिनेशन कैसी होगी? जस्टिस की डेफिनेशन मोरालिटी एस्पेक्ट, उस समय के जो कि भाई आप अपनी ड्यूटी कीजिए, जो पीजेंट्स हैं वो अगर अपनी ड्यूटी करें, एडमिनिस्ट्रेटर्स अपनी ड्यूटी करें, सोल्जर्स अपनी ड्यूटी करें, राइट? सो द फोर्थ विल प्रिवेल। ठीक है, जैसे विजडम के बिना क्या जस्टिस संभव है? नहीं। क्या करेज के बिना जस्टिस संभव है? नहीं। क्या टेम्परेंस के बिना जस्टिस संभव है? नहीं। तो उन्होंने अलग अलग क्लासेस से कहा कि आपके लिए विजडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, आपके लिए करेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सोल्जर्स क्लास, और आपके लिए टेम्परेंस, संतोष, ओके, एपेटाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो वहां की पीजेंट्स या मर्चेंट्स क्लास थी उनके लिए।
that you are the producers. So don't try to think that because you are producing, so you will try to have complete control on economy, because these are the goods which are for everyone. सबका भला होना चाहिए, खाना तो सबको मिलना चाहिए, इसलिए उपयोग की जो वस्तुएं हैं वो सबको उपलब्ध होनी चाहिए. So when I understand that where Plato was thinking, प्लेटो का फिलॉसफिकल आइडिया है, जैसे आप उनकी जस्टिस की थियोरी पढ़ते हैं, थियोरी ऑफ आइडियाज पढ़ते हैं. ओके, थियोरी ऑफ आइडियाज में आपने उनका एलेगरी ऑफ केव्स और आइडिया ऑफ डिवाइडेड लाइंस जरूर देखा होगा. यू मस्ट हैव डेफिनेटली गॉन टू. ओके, तो प्लेटो कहता है कि जो आपको नजर आ रहा है अपनी सेंसेस से, एक तो ये दुनिया है. ओके, दिस इज वन रियल्म, और एक वो रियल्म है जो आप केवल चिंतन से प्राप्त कर सकते हैं, विच यू कैन एक्चुअली गो टू अचीव ओनली व्हेन यू फिलोसोफाइज. सो इफ आई टॉक अबाउट हु विल बी फेवरिंग फिलोसोफर किंग, डेफिनेटली प्लेटो, बिकॉज प्लेटो will be talking, will be understanding that how the administrators should be brought up. So his idea of dormitory, which has been criticized, actually is nothing but a supporting hypothesis of his larger hypothesis of philosopher king. तो बच्चों, क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस बड़े ही सीधे सीधे आ जाते हैं. कभी तो मैं आपसे यही पूछ सकता हूं कि पॉलिटिकल साइंस की एम्पेरिकल अप्रोच ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है या नॉर्मेटिव अप्रोच ने? ये यूपीएससी का एक तरीका रहता है. फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है और इन्होंने क्या हेल्प की है. सो द क्वेश्चंस आर स्ट्रेट. इसके पॉपुलर होने का जो रीजन रहा है वो ये रहा है कि पीएसआईआर में, अगर अच्छा वैसे भी मैं कहूं कि भाई यूपीएससी ने जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस बना दिए. हमेशा ये डर बना रहता है बच्चों को कि अभी तो थोड़ा सरल चल रहा है, एनी टाइम, तो यहां पॉसिबल नहीं है. अब प्लेटो में, एरिस्टोटल में, सेंट ऑगस्टीन में क्या मुश्किल पूछ लेंगे, जीन जैक्स रूसो में, ठीक है, जेएस मिल में क्या पूछेंगे मुश्किल, जॉन लॉक में क्या पूछेंगे मुश्किल. सोच के देखो क्या पूछ लेंगे. थॉमस हॉब्स, जहां से शुरू करेंगे आप, मैकियावेली पहले, क्या पूछ लेंगे मुश्किल. उनका थॉट जो है उसी में से तो कोई बात पूछेंगे, और अगर हमने पूरा पढ़ रखा है तो कुछ मुश्किल हो ही नहीं सकता. दैट्स इम्पॉसिबल टू आस्क अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. जो बहुत करंट रेलेवेंस की चीजें होती हैं वहीं पर कॉम्प्लेक्सिटी बनती है. ओके, सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी, तो नई रिसर्चेस लगातार होती रहती हैं, तो सब्जेक्ट है भी नहीं बहुत पुराना, इट्स नॉट दैट ओल्ड. उनमें बहुत बड़े चेंजेस आने की गुंजाइश रहती है कि एक बार पेपर इस तरह से दे दिया जाए कि वो क्रैश कर जाए. कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अगर आपने ठीक से पढ़े हुए हैं, बट दैट इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट बी जस्ट thinking that I just go through some notes which are available in the market and no. अगर आप पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स भी किए हुए हैं, ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, एंड यू कम फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग. बट अगर नहीं किया है तो इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी कुछ चीजें रहा करती हैं. ठीक है, और चीजें जोड़ता हूं और इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे. सी फ्रेंड, अब इसके बाद जाहिर बात है इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ना ही चाहिए. इंडियन गवर्नमेंट का सिस्टम और पॉलिटिक्स इन इंडिया, हिस्टोरिकल मूवमेंट किस तरह से रहा, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल अरेंजमेंट, पॉलिटिकल फिलॉसफी इन इंडिया. ठीक है, अगर मैं पूछूं कि आपका संविधान किस से प्रेरित ज्यादा है, तो हाउ डू यू एक्चुअली जस्टिफाई ऑन दिस क्वेश्चन, करेक्ट, ये पढ़ेंगे. देन
you study something about comparative politics, you study international institutions and India in the world or India's relations with other countries. With other countries. अब इनमें तो जो कुछ अगर इसमें बेटा मैं पूरा समझूं, ठीक है, तो बस यही बचता है जिसमें डायनामिज्म है। इस सब्जेक्ट का यह सबसे बड़ा फायदा है। अगर कहीं आपको डायनामिक पढ़ना है तो केवल एक चीज है, पूरा सब्जेक्ट डायनामिक नहीं है, केवल ये डायनामिक है। ओके, बाकी 500 में से 420 नंबर स्टैटिक हैं, स्टैटिक। तो इसकी ये इसलिए बेटा इसके बच्चे टॉपर्स हो जाया करते हैं। ओके, अगर 420 नंबर बढ़िया से प्रिपेयर किए हुए हैं तो आप फंसोगे नहीं। दूसरी बात, उसमें भी डायनामिक पढ़ने में भी क्या दिक्कत है, वो भी बहुत आसान है। और इट हेल्प्स यू इन 50 मार्क्स ऑफ जीएस पेपर 2। और बाकी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो तो पूरा जीएस पेपर 2 यानी कि कंप्लीट 250 नंबर तो एक हो गए जो आपको आते हैं। अब इसमें ग्रुप्स भी पढ़ते हैं कि भाई पॉलिटिक्स है तो जाहिर बात है कौन से ग्रुप्स, अगर मैं इंडिया में पढ़ूं तो इंडियन पॉलिटिक्स इज अफेक्टेड बाय व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स का क्या रोल है, पॉलिटिकल पार्टीज की कैसी फंक्शनिंग है, वो सब भी यहां पर आता जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, करेक्ट। थोड़ी सी बातें आप बच्चे बहुत सारा देखते रहते हैं, किताबों की करूं मैं तो 100% नोट्स दूंगा मैं। I will give you 100% notes, written notes, dictated notes. कोई प्रिंटेड का चक्कर नहीं होगा। प्रिंटेड मिलेंगे बट टू हेल्प यू। ओके, क्लास नोट्स होंगे तो फोकस्ड होंगे, ब्रीफ होंगे। दे विल बी फोकस्ड, दे विल बी मोर ब्रीफ, यू कैन यूज देम डायरेक्टली। फिर भी इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी बाय ओपी गौबा, वो किताब आप लिख सकते हैं। एडम्स की एक किताब है 50 पॉलिटिकल थिंकर्स, वो भी ले सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो यू कैन टेक। यू कैन ऑल्सो टेक ग्लोबल पॉलिटिक्स बाय एंड्रू हेवुड, वो भी देख सकते हैं। आप कहेंगे मैं केवल बाहर की बातों की बात कर रहा हूं, नो, यू कैन टेक बीएल ग्रोवर ऑल्सो, इसके लिए हेल्पफुल रहती है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल मूवमेंट इन इंडिया, हाउ पॉलिटिक्स, political institutions, shaping of India's struggle for independence, वो सारी चीजें, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, वो सारी चीजें बेटा आ जाती हैं। सो इट विल कवर योर मॉडर्न इंडिया ऑल्सो। ओके, जीएस पेपर 1 उसको भी कवर करेगा, दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड। एंड देन फाइनली एथिक्स के लगभग 100 से 120 नंबर कवर कर जाता है। So this is a paper, if you take it seriously, it can help you to cover around 850 to 900 marks strongly apart from it. 500 नंबर तो अपने हो गए, 250 जीएस पेपर 2 हो गया, 50 जीएस पेपर 1 और लगभग 100 उधर। So if you see this simple mathematics, okay, कई बार हम सोचते हैं बड़ा है, नो, आई हैव वर्कड एज अ मैनेजमेंट प्रोफेशनल ऑल्सो, सो आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल नहीं। इस सब्जेक्ट से मैंने पहले भी कई टॉपर्स दिए हैं। ओके, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो दिस इज, आई हैव टॉट पबैड ऑल्सो, आई हैव गिवन टॉपर्स विद दैट सब्जेक्ट ऑल्सो, आई हैव गिवन टॉपर्स विद दिस सब्जेक्ट ऑल्सो। आजकल इफ आई से दिस सब्जेक्ट इज डूइंग वेल, क्योंकि यहां पर
डायनेमिज्म का स्कोप इतना है, बाकी पेपर्स में डायनेमिज्म का स्कोप 80% होता है, कुछ में तो 100%। तो वहां पर 300 नंबर लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बढ़िया पढ़े होंगे तो 240, 245, 235, you can get it. You can get 255 also if you are very lucky. But to score 310, 320, कुछ ऐसा होना चाहिए, आप बच्चे हैं जो आपने कहें कि मैं वॉमिट कर पाऊं सीधे, आई हैव जस्ट गॉन थ्रू इट एंड आई कैन वॉमिट इट देयर। तो यहां पर उस तरह के अप्रोचेस पढ़ने को मिला करती हैं। ओके फ्रेंड्स, सो we will meet you again in another open session on 25th. Till then, bye bye. Thank you very much. Bye bye.